Okay, so we'll start with just quick revision of specific heat capacity. तो अगर आपको याद होगा in the last session we have started with specific heat capacity. So specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius, right? So of course we have defined this separately for solids and liquids. ऐसा क्यों था? क्योंकि in case of solids and liquids, when you increase the temperature by 1 degree Celsius by supplying heat to the body, there is no significant change in volume and pressure. So that is why यहाँ पे हम liquid and solids का specific heat capacity अलग से define कर रहे थे. Then we have defined specific heat capacity for gases separately. And by the way, you should remember specific heat capacity for solids and liquids and also for gases is delta Q M delta T, where delta Q is the amount of heat supplied, M is mass of the substance, and delta T is increase in temperature. For gases, it is seen that अगर हमको 1 डिग्री से भी टेम्परेचर चेंज करना है तो वॉल्यूम और प्रेशर में देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज. दैट इज व्हाई फॉर गैसेस वी हैव टू डिफाइन इट सेपरेटली. एंड आल्सो गैसेस का जब केस आता है तो हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट अलग से डिफाइन करते हैं, मोलार अलग से डिफाइन करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस. And for molar specific heat, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. Then in these two cases, अगर आपने pressure constant रखा है तो then you say specific heat capacity at constant pressure. अगर आपने volume constant रखा है तो specific heat capacity at constant volume. तो यहाँ तक हमने कल complete किया था and we have definitely defined both principal specific heat and molar specific heat. Now today we want to derive a relation between principal specific heat and molar specific heat. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन डिराइव करने से पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए जो हमको ऑलरेडी पता है. सो व्हाट वी ऑलरेडी नो इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as specific heat, known as principal specific heat. ये हमको ऑलरेडी पता है. और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो नाउ इन जनरल यू नो दैट दी S इज डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, ये हमको पता है. बट अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो यू विल राइट डाउन हियर S सफिक्स P. सो फॉर कांस्टेंट प्रेशर व्हाट यू हैव इज S suffix P, SP. This is delta Q by M delta T, right? इतना आपको ऑलरेडी पता है. Also, this is what? This is principal specific heat at constant pressure. So also what we know is, we know that molar specific heat at constant pressure is molar specific heat Cp equal to सब सेम है dq by dt, सिर्फ यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलार स्पेसिफिक हीट आप डिफाइन ही मोल्स के लिए करते हो, तो इसलिए यहाँ पे n
और वो करते हो मास के तो वहां पे m, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। तो सिर्फ इतना, m की जगह पे n, s की जगह पे c, इक्वेशन नंबर 2। बट ऑफ कोर्स आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, बट नंबर ऑफ मोल्स, no 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 number of moles, but number of moles, number of moles moles is small n equal to mass of substance upon molar mass, molecular weight बोलते हैं इसको। अब molecular या फिर atomic weight, क्यों ऐसा? क्योंकि depending on the substance, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस, इफ यू टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस, दे आर मॉलिक्यूलर गैसेस। इफ यू टॉकिंग अबाउट हीलियम गैस, इट इज एटॉमिक गैस। इफ यू टॉकिंग अबाउट आर्गन गैस, इट इज एटॉमिक गैस। तो ये कैपिटल एम जो होता है ये मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट होता है। और मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से आता है? एटम से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो मतलब H2 गैस है, तो हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूलर गैस, उसमें हाइड्रोजन के दो एटम, तो मॉलिक्यूल का वेट कहां से आएगा? एटम के वेट से। और एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है? 1। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? तो एंड आल्सो पक्का यू शुड नो व्हाट इट इज, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दिस m, where capital M is molecular weight or atomic weight, molecular or atomic weight. Small m is mass of the gas, normally in grams, right? या फिर किलोग्राम, depending on the system. Anyways, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अगर इसका इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो therefore from इक्वेशन नंबर 2 and 3 you have Cp equal to 1 upon small n, which is small m by capital M, and capital M will go in the numerator. और क्या है यहाँ पे? डेल्टा Q by डेल्टा T। अब सिर्फ इस कैपिटल M को अलग कर लो, therefore you will have Cp equal to capital M अलग कर लिया, 1 by small m delta Q by delta T. This is Sp, m into Sp, right? तो आपको मिल गया मोलार स्पेसिफिक हीट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। Similarly, this is for constant pressure. Similarly, for constant volume, you will have this as MSV. Good. So this is what you have. And in general, what you will have is C equal to M into S, where C is molar specific heat, M is molecular weight, and S is principal specific heat. अगर constant volume बोला होगा तो यहाँ V और यहाँ पे V लिख देंगे। अगर प्रेशर बोला होगा तो P and P। तो in general you have molar specific heat equal to molecular weight into principal specific heat. So this is how you can find out relation between principal specific heat and molar specific heat. Then next topic is heat equation. Heat equation हमको ऑलरेडी पता है ये इक्वेशन, we already know this. You see, ये जो फॉर्मूला है this one, यहां से डेल्टा क्यू क्या आएगा? एस एम डेल्टा टी, दैट इज हीट इक्वेशन, राइट? लेकिन अभी इसको अलग से एक टॉपिक बना के दिया है तो ठीक है, तो हम भी इसको वैसे समझेंगे। सो वेल, बाय द वे, आइडिया इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है 1000, राइट? वैल्यू इज 1000 व्हाट, 1000 watt. Look, ऐसा कैसे? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दैट ये जो सब्सटेंस है जिसका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का वैल्यू 1000 है, इट मींस अगर इस सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना होगा, कितनी क्वांटिटी का? 1 किलोग्राम क्वांटिटी का, तो कितना हीट लगने वाला है? 1000 joules. So if any substance, for example, has principal specific heat value as 1000 joule per kilogram per degree Celsius, it means
that to raise the temperature of 1 kilogram of that substance by 1 degree Celsius, amount of heat required is 1000 joules. Similarly, if the temperature of the substance, the temperature of 1 kilogram of that substance falls down by 1 degree Celsius, so how much heat is released? 1000 joule. 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए अगर 1000 जूल लग रहा है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम होगा तो कितना रिलीज होगा? 1000 रिलीज होगा. सिंपल. तो पहले लिख लेते हैं, then I'll tell you how you make equation from that. So if substance has principal specific heat of 1000 joule per kilogram per degree Celsius, then it means that to raise the temperature of 1 kilogram of that substance, 1000 joule of heat, मतलब energy is required. Similarly, if the temperature of 1 kg of that substance falls by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, then 1000 joule of energy is released. This is what you know. Clear? Simple है. This is extremely simple thing. यहाँ तक clear. Therefore, from this information we can write down. From this information we can write delta Q, मतलब heat supplied or released. We can say heat supplied or released. Heat supplied or released. Delta Q is equal to M. M is mass into delta T. Delta T is change in temperature into S, which is principal specific heat. Right? ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं हीट इक्वेशन. That's it. तो कुछ नहीं है वही अल्टीमेटली यही इक्वेशन था, सिर्फ थोड़ा सा हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया. वी हैव जस्ट सेड कि अगर कोई सब्सटेंस होगा उसका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का वैल्यू अगर 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा तो इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब मास आ गया. 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस मतलब मास आ गया. उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा? 1000. और ऑलरेडी हमको एस का वैल्यू पता था, मतलब यू आर रिलेटिंग अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विथ मास, टेम्परेचर एंड principal specific heat. So this is called as heat equation. So this equation is known as heat equation. This equation is known as heat equation. Simple. Clear यहाँ तक? 100%? Good. तो अगर कोई एक सब्सटेंस देते हैं जिसका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट 250 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, मतलब क्या? उसका मतलब क्या? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of that substance by 1 degree Celsius is 250 joule, right? Good. Then मतलब इस केस में टेम्परेचर इस केस में जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 250 जूल चाहिए. मतलब इट्स लाइक टोमेटो काइंड ऑफ सब्सटेंस है ना.
जल्दी से. Good. Less amount of heat raises the temperature by appreciable amount. Then next is something called as heat capacity. इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं. क्या आप बोलोगे अरे पर हीट कैपेसिटी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया? नहीं, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया. अब आए नंबर हीट कैपेसिटी का, थर्मल कैपेसिटी का. एक ही डिफरेंस है. अगर आपको याद होगा तो जब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई कर रहे थे. हम बोल रहे थे यूनिट मास, तो फिर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल तो फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई नहीं करने वाले. हम ये बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी. आई डोंट केयर कि 10 किलोग्राम है कि 20 किलोग्राम है, पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगेगा उसको बोल देंगे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. तो यही डिफरेंस है. हियर यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यू आर जस्ट सेइंग कि पूरी बॉडी का टोटल. क्योंकि अब देखो ऐसा है, हमारे पास 10 किलोग्राम ऑफ गैस भी है, उसमें से 1 किलोग्राम को का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. पूरे 10 किलोग्राम का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी. सिंपल. सो द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity और थर्मल कैपेसिटी. सिंपल. और ऑलरेडी हमको पता है हीट इक्वेशन, राइट? तो वी नो दैट व्हाट डू यू नो इज डेल्टा Q is m delta T S. By definition of heat capacity, it is the amount of heat required to raise the temperature of whole body. मतलब mass is not specified. मतलब mass का तो आप वैल्यू डाल ही नहीं सकते, राइट? कांस्टेंट मतलब वैल्यू नहीं पता, बट ये तो पता है कि dt is 1 degree Celsius. Then delta Q is equal to m into S. तो ये डेल्टा Q को हम बोल देंगे हीट या फिर थर्मल कैपेसिटी. तो हीट or thermal capacity is mass multiplied by principal specific heat. Right? So if you want, you can also find out what is the SI unit. Simple है. M is in kg. ये तो ऑलरेडी पता है. जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. कैंसल. तो जूल पर डिग्री सेल्सियस. सिंपल. So that is, I am leaving something for you to do. Clear यहाँ तक? सिंपल था, कुछ नहीं. हीट इक्वेशन यूज करना है, उसमें से डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री डालनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई नहीं करना है. पूरा का पूरा बॉडी, तो चाहे वो 1 किलो हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे 10.5 kg हो, चाहे 10.55 kg हो, आई डोंट केयर, बट मास इज नॉट स्पेसिफाइड. पूरे ही बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है. देन if you have understood, we will solve some questions related to also heat equation and also what we have learned in the previous session. So example 7.12, a sheet of brass is 50 centimeter long and 8 centimeter broad at 0 degree Celsius. मतलब आपके पास एक ब्रास का शीट है which is not square but which is rectangular, और उसका लेंथ आपको दिया है at 0 डिग्री. कितना है? 50 सेंटीमीटर. और उसका ब्रेड्थ आपको दिया है at 0 डिग्री 8 सेंटीमीटर, right? Then you should know area at 0 degree will be length into breadth. 50 into 8,
400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा इसको, क्यों? क्योंकि जब जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन की बात होती है ना, वो वैसे भी सिर्फ 1 अपॉन केल्विन आता है। जैसे लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ऐसा था ना वो, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, ये तो वैसे भी डायमेंशनली कैंसिल होगा ना, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल होगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल होगा। आगे बोला है इफ द सरफेस एरिया एट 100 डिग्री इज 401.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया एट हायर टेम्परेचर T is 401.57 centimeter square. Find the coefficient of linear expansion of brass. Find the coefficient of linear expansion. Very good. Find क्या करना है, अल्फा एंड नॉट बीटा, राइट? और दिया क्या है, एरिया का इंफॉर्मेशन, लेकिन एरिया के इंफॉर्मेशन के साथ कौन कनेक्टेड है, बीटा, और कौन नहीं है, अल्फा। तो यू रिमेंबर बीटा इज 80 minus A0 upon A0 delta T, right? But wait a minute, you also know alpha is beta by 2, right? तो हो जाएगा इससे solve, doesn't matter, it's simple. So now solution is very simple. So from these two equations you see beta is 2 alpha, right? Directly substitute कर दो, यहाँ से beta is 2 alpha, therefore what you will get is, therefore you will have 2 alpha equal to 80 minus A0 upon A0 delta T, and this is equal to 2 alpha equal to 80, 401.57 minus 400 upon 400, and change in temperature 100 minus 0, higher temperature minus lower temperature, higher temperature is 100, lower is 0, so T2 minus T1. Then therefore you have 2 alpha equal to 1.57 upon 400, मतलब 10 power 2 और 10 power 2 है 10 power ऊपर जाएगा, right? This will go up. Therefore 2 alpha equal to 1.57 by 4 into 10 power minus 4. अब आपको ये पता होना चाहिए that ये 1 by 4 is 0.25, right? This is 0.25, या फिर मैं रफली बता सकता हूँ, ज्यादा बेटर है। ये 1.6 है ना, एक काम करो, इसको 1.57 को लिख दो 1.6, तो 4 1 जा 4, 0.4 जा 1 जा एंड 0.2 जा, तो 2 into 10 power minus 5 है ना, 2 into 10 power minus 5, yes। ये है रफ कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी, ये आपने क्या लिखा था, 4 1 जा 0.4, ये आता है 0.39, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 0.4 की जगह पर 0.39, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ऊपर से एक काम करो, 2 अल्फा, ये 0.39 को लिख लो 3.9 10 पावर माइनस 1, और ये माइनस 4 मतलब 10 पावर माइनस 5, 1 जा एंड 1.95 जा, जो रफली 2 आ रहा था एग्जैक्टली 1.95 आ रहा है, 1.95 into 10 power minus 5 per Kelvin. Done. Question: if the temperature of 4 kilogram mass of a material of specific heat capacity 300 joule per kilogram per degree Celsius rises from 20 to 30 degrees, find the heat received. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको गिवन में दिया है टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम, मतलब मास इज 4 किलोग्राम ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, 300 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 20 to 30, मतलब डेल्टा T इज final temperature minus initial temperature 30 minus 20, that is 10 degree Celsius. Find out what is amount of heat received. You are supposed to find out what is delta Q. Then very simple. So you have here formula which is very simple. Delta Q equal to MS delta T. हो गया solve.
delta Q is M 4 S 300 3 into 100 delta T is 10 ये 12 है ये 1000 है तो 12,000 जूल सिर्फ जूल याद रखना ओनली जूल अब बोलोगे भाई ओनली जूल अरे M is kilogram. This is joule per kilogram per degree Celsius and delta T is degree Celsius. Cancel. क्या बचा? Joule. वैसे भी बोला है amount of heat received. Heat is in joule. Okay, so let us go ahead with next topic. Next topic is called as calorimetry. As you remember, जैसे thermometry था, thermometry was the science of temperature and its measurement, and the instrument that you use to measure temperature is called as thermometer. What is calorimetry? You need to understand. See, I told you दो तीन बार बताया था कि फिजिक्स में दो वर्ड बार बार आएंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेल्स यू हाउ मच इन व्हाट अमाउंट इट इज हैपनिंग तो और अगर आपको याद होगा यू हैव वन हॉट बॉडी एंड अदर कोल्ड बॉडी इफ यू ब्रिंग these two in contact what happens is heat flows from hot body to cold body so that is qualitative how much in what quantity तो वो भी मेजर करना पड़ेगा तो कैलोरीमीटर is a device is an instrument which measures how much amount of heat is transferred and calorimetry is experimental technique of measurement quantitative measurement of heat transfer तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is calorimetry it is an experimental technique. It is an experimental technique. Experimental technique of measurement of heat transfer. This is basically quantitative measurement. And it is experimental technique. तो याद रखना मैं as I told you ये 12th में भी काम में आएगा जब जब फिजिक्स में थियोरेटिकल टॉपिक आए और स्पेशली जब जब इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही हो यू हैव टू एक्सप्लेन सम इंस्ट्रूमेंट कि हमारे पास थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर का जब आपको पूरा थ्योरी लिखना होगा तो ऑलवेज स्प्लिट अप इनटू पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन सबसे पहले ये बताओ कि अरे ये है क्या व्हाट इज कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर इट इज experimental technique of quantitative measurement of heat transfer then calorimeter is an instrument calorimeter is an instrument calorimeter is an instrument which measures the amount of heat transferred from one part of the system to other part or from one body to another body. Good, ये हो गया एक बार आपने इंट्रोड्यूस कर दिया then it is time to explain construction. और कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो क्योंकि आपके आंखों के सामने जब डायग्राम होता है ना तो अपने आप समझ में आता है कि क्या लिखना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायग्राम है क्या तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ इसमें एक होता है सिलेंड्रिकल वेसल तो यू हैव अ सिलेंड्रिकल वेसल मेड अप ऑफ कॉपर आई विल चेंज द कलर फॉर सम रीजन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई बाद में समझा दूंगा इंग्लिश so you have a cylindrical vessel made up of copper ये copper vessel है this is copper vessel then ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ इसको you will understand later कि ऐसा क्यों किया मैंने okay then ये जो cylindrical vessel है copper vessel it also has a stirrer पता है
टू मिक्स, चाय में शक्कर डालते हो फिर उसको मिक्स करते हो, स्टीरर, तो यू हैव अ स्टीरर हियर, राइट, तो यू हैव समथिंग टू मिक्स, स्टीरर. अब remember one thing, stirrer along with this cylindrical vessel is called as calorimeter. So you have a stirrer along with this cylindrical vessel is called as calorimeter. और ये दोनों बने होते हैं कॉपर के, क्योंकि तीन अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस आएंगे, तीनों सब्सटेंस अलग अलग है तो तीनों का मास अलग अलग होगा, तीनों का मास अलग होगा, तीनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग होगा, तो ये याद रखना. देन इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्यों लगेगा? टू मेजर टेम्परेचर, और कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ वो मेजर तभी समझेगा ना, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ. अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइट. देन ये थर्मोमीटर का मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट को छोड़ के कोई और रोल नहीं है, तो इट इज नॉट टेकन इनटू इक्वेशंस एनीवेयर. इसका कहीं पे भी इक्वेशन में कोई काम नहीं है. इट इज जस्ट एक्सटर्नल डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर. देन यू हैव वाटर. उसके बाद व्हाट यू हैव इज वाटर. तो यू हैव वाटर, ओके, तो यहाँ पे वाटर है, something like this. Then ठीक है, doesn't matter, पूरा वाटर है, और स्टीरर जो है इट शुड आल्सो बी देयर, ओके, ये भी वाटर के अंदर होना चाहिए, नहीं तो मिक्स इशू कर रहे हो फिर, नथिंग. एयर भी नहीं होगा यहाँ पे. एनीवे, सो यू हैव अ स्टीरर. अब ये जो पूरा सिस्टम है, it should be insulated, and you should know what is the meaning of insulated. This is thermometer, of course. आपको पता होगा, मैंने बताया था या केमिस्ट्री में सीखा भी होगा आपने. There are three types of systems: open system, closed system, isolated system. Open system is a system in which matter as well as energy is exchanged with the surroundings. Example, पानी गर्म करने के लिए जब रखते हो गैस पे, आप उसको ओपन छोड़ देते हो, तो वेपर मतलब मैटर इज आल्सो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, राइट, एंड हीट इज आल्सो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब इट इज अ टू वे. इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मैटर विद द सराउंडिंग, आल्सो इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग. देन यू हैव क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज अलाउड होता है, मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, पैक्ड बॉटल उठा के फ्रिज के बाहर रख दो. आफ्टर अ व्हाइल यू विल सी कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया ना, पहले ठंडा था अभी गर्म हो गया, तो इट हैज टेकन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट ओनली, लेकिन क्वांटिटी वाइज जितना था उतना ही है, राइट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, in which there is no exchange of either heat or matter with the surrounding. तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसको इंसुलेट करना पड़ता है. इंसुलेट मतलब आपको एक नॉन कंडक्टिंग चेंबर चाहिए, ऐसा चेंबर चाहिए which does not conduct heat, which does not allow heat transfer to or from the system. ना अंदर आने देगा ना बाहर जाने देगा. तो you will have a chamber, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग वॉल्स, या फिर इसको और एक नाम दिया है, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग जैकेट. व्हाई इंसुलेटिंग जैकेट? बिकॉज़ इट इज जस्ट लाइक जैकेट. ये जैकेट जैसा है, ठंड लगती है तो क्या करते हो आप? जैकेट. मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू इंसुलेट. जस्ट अ मिनट, सॉरी. So what you're trying to do is you are trying to insulate, मतलब you don't want. मैंने कल ही बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठंड में ठंड क्यों लगती है? क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर इज लोअर कंपेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर, एंड व्हेन यू पुट जैकेट यू डोंट वांट द हीट फ्रॉम योर बॉडी टू गो टू द सराउंडिंग. तो ये भी वैसा ही है. दिस इज इंसुलेटिंग जैकेट बेसिकली, मतलब इंसुलेटिंग वॉल्स है,
heat transfer is not allowed, so you can call this as insulating jacket. Insulating jacket. Clear हो गया? Yes. This is cylindrical vessel, done. Insulating jacket, yes, this is water. So this is what you have. Okay. तो इसका हम आधा ही पार्ट आज देखेंगे, इक्वेशन का पार्ट हम बाद में देखेंगे, just to understand. अब as I told you, calorimetry is an instrument which measures, basically calorimeter is an instrument which measures amount of heat transferred, right? किसके साथ, किसका heat transfer? यहाँ पे तो हमने कुछ लिया ही नहीं, हमने सिर्फ वाटर भर के रख दिया। और याद रखना, सफिशिएंट टाइम तक अगर आप वाटर को, स्टीरर को और सिलेंड्रिकल वेसल को कांटेक्ट में छोड़ दोगे सफिशिएंट टाइम तक, तो वो सारे के सारे सेम टेम्परेचर पे हो जाते हैं, राइट? तो इफ यू आर अलाउइंग द सिस्टम, कौन सा सिस्टम, वाटर एंड कैलोरीमीटर, टू बी इन कांटेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे विल बी एट सेम टेम्परेचर ऑलरेडी। तो अब किसका हमको हीट ट्रांसफर मेजर करना है? तो हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल हम दूसरे ही बीकर में ले रहे हैं। वी हैव सैंपल ओवर हियर, वी हैव अ सैंपल, सम सैंपल ए, वी हैव सम सैंपल ए, यहाँ पे एक सैंपल है। डेफिनेटली दिस सैंपल दैट वी आर टेकिंग इज एट हायर टेम्परेचर। तो हमारे पास एक सैंपल ए है विच इज एट हायर टेम्परेचर। सैंपल ए, इसका टेम्परेचर है T1, इसका मास है M1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S1, करेक्ट? तो आपको हीट ट्रांसफर मेजर करना है बिटवीन दिस सैंपल एंड द सिस्टम, एंड द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, राइट? तो आपके पास ये जो सैंपल है, इट इज एट हायर टेम्परेचर, राइट? देन क्योंकि तीन सब्सटेंस अलग अलग, तो ये जो सैंपल है इसका स्पेसिफिक हीट इज S1, मास इज M1, टेम्परेचर इज T1। ये जो वाटर है इसका मास है, लेट अस से यू कैन टेक इट टू बी M2, और इसका स्पेसिफिक M3 बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक हीट इज S3। और ये जो कैलोरीमीटर है विच कंसिस्ट ऑफ अ स्टीयर एंड अ सिलेंड्रिकल वेसल, ये कॉपर मटेरियल का है, तो कॉपर मटेरियल अलग है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा S2, और इसका टोटल मास विल बी M2, लेकिन दोनों का टेम्परेचर होगा T2। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से कांटेक्ट में थे, तो टेम्परेचर विल बी सेम, करेक्ट? क्योंकि बहुत टाइम से कांटेक्ट में थे, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बाहर रख दिया तो थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर सेम जाता है, तो वही है, सेम थिंग, राइट? अब स्टीरर क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको क्या मेजर करना है? हीट ट्रांसफर। नॉर्मली मेजर करना होता है हीट ट्रांसफर, लेकिन कैलोरीमीटर का यूज होता है टू मेजर स्पेसिफिक हीट, एस की वैल्यू। मैंने बताया ना वहां पे, अभी बताया था 1000, 500 ऐसे बताया था, और यहाँ पे भी दिया गया 300। तो क्वेश्चन इज कैसे मेजर किया? हाउ डू यू मेजर? यू मेजर यूजिंग कैलोरीमीटर। तो ऐसा है, अब क्या करेंगे, अब ये सैंपल उठाएंगे, इस लिड को ओपन करेंगे, सैंपल इसमें डाल देंगे, वापस से लिड को क्लोज कर देंगे और स्टीरर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमको वाटर और सैंपल का मिक्सचर चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ मिक्सचर्स। जूस बनाते हो ना, जूस, तो पानी और फ्रूट डाल के मिक्स करते हो, हाँ वही है, दिस इज द सेम केस, राइट? तो you have water, you have hot liquid, you're putting it into water and mixing it up. Then who was at higher temperature? Liquid, मतलब कौन सा? sample A. तो definitely heat flows from higher temperature to, मतलब heat lost by sample that is not water, sample is some other liquid, is equal to heat gained by, दो चीजों ने, दो अलग अलग सब्सटेंस ने हीट गेन किया, हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले आप कंस्ट्रक्शन में डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर ये लिख दोगे क्या क्या है इसमें, बता देना। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल मेड अप ऑफ कॉपर विद अ इनबिल्ट स्टीरर,
Then it has a thermometer to measure temperature. Then you have an insulating jacket which prevents the exchange of heat from the surrounding, right? Then it has an insulating lid, है ना? ये lid मतलब ढक्कन. This is insulating lid. ये भी lid और wall दोनों ही अलाउ नहीं करते. Both of them does not allow heat transfer. ना lid अलाउ करेगा ना wall, right? और ये ऐसा हवा में हैंगिंग है, right? Very good. Magic, हवा में हैंगिंग नहीं, तो you give it supports over here. So there are supports. The supports are to basically ये सपोर्ट क्यों होगा? क्योंकि ये जो कंटेनर है वैसा है, ये नीचे गिरना नहीं चाहिए. That is why. Good. Then heat lost by sample, क्योंकि आपने क्या किया, सैंपल लिया, वाटर में डाल दिया, मिक्स कर लिया, तो heat lost by sample will be equal to heat gained by water plus heat gained by calorimeter. मतलब it works on the principle of conservation of energy. Energy lost by sample equal to energy gained by water and calorimeter. So principle is nothing but conservation of energy. So it works on the principle of conservation of energy. Good. So this point onward, we will continue in the next session because we have to derive an equation. So that's it for today.